shall we start? It's 11:03. Okay, Ayush, shall we start? Yes, I think we can start. Okay. Good morning and welcome everyone. This is Dr. Amit Nandu welcoming all of you. Today we have gathered here for a very unique event, which is about children, which is about transformative education of children through martial arts. So it's a very unique topic. I've never heard myself something like this before, and it is going to be delivered by Mr. Lalan, who is a young martial artist learning the discipline of martial arts for the last 10 years, and he's traveled various places in the world and learned various martial art forms like Japanese sword fighting, Bruce Lee's style, Jeet Kune Do, Wing Chun Kung Fu, mixed martial arts, etc. Mixed martial arts, everyone will be aware because nowadays we see a lot of movies on mixed martial arts, and we see a lot of a lot of places mixed martial art classes going on. Uh, we had, as Indians, we had heard of only two forms of martial arts: karate and judo, or kung fu. But nowadays there are so many martial arts forms that we are not aware of, which we will come to know through this talk. And Vineet has started learning martial arts from the age of 17 and achieved black belt in Bruce Lee's style Jeet Kune Do at the age of 20. That means within 3 years he achieved a black belt. And since then he has gone for many higher education studies in multiple martial art forms, and he has achieved various certifications and belts. Most recently, he has started his own martial art brand name, Mushin Martial Arts, which again stands for MMA, as a way of learning, authentic learning and development of the art, all the way from kids, which is 5 years onwards, to adults across 8 martial arts forms. So, Vineet, I welcome you to this talk, and thanks a lot for sharing your knowledge with us. And the floor is all yours now. Thank you. Well, thank you, Mr. Amit, and yeah, thank you for. I mean, actually, I'm very delighted to be again here. Yesterday also we had a session yesterday evening, and that was mainly meant for the adults. But today's talk was actually meant for parents to listen, because this is a very important topic of transformative education. But before we can actually go to the topic, we need to first a little bit know about what is martial art, because it's, as Amit bhai also mentioned briefly, it's not a clear idea of what is martial art. Now, लेमैन की भाषा में martial arts is like art of learning how to fight, a युद्ध कला. Many times it's all, you can also call it art of war in a way. Now, many times parents might think, क्यों बच्चों को यहाँ क्यों भेजना, ये तो बहुत ही डेंजरस आर्ट है.
क्यों, वाई चिल्ड्रन शुड लर्न टू फाइट, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे. And it's of course it's a very normal and natural concern, but actually martial art is it's not and actually meant for physical use at all. Actually you learn physically, but it is meant to actually prepare you for some different kind of fights, and which we will actually discuss when we go to the topic of education, that what is this fight, what is this battle are we talking about. बिफोर वी कैन स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली नो दैट जो मार्शल आर्ट्स है ये एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स आ जाते, बहुत सारे आर्ट आते हैं एक्चुअली, जो कि हमने सुना होगा कभी, कराटे, कुंफू. और ये तो सिर्फ दो तीन हमने सुना है, एक्चुअली 1000 से भी ज्यादा यू नो इसके अंदर आर्ट है. जैसे कि आर्चरी फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि आर्चरी जो है वो भी एक मार्शल आर्ट है. बॉक्सिंग एक मार्शल आर्ट है. लाठी, बो स्टैफ जो कि है वो भी एक मार्शल आर्ट है. एनी वेपन सिस्टम और एनी हैंड टू हैंड लर्निंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वो एक मार्शल आर्ट कैटेगरी में आ जाता है. और जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं, हम सिर्फ फिजिकली नहीं सीखते, हम सिर्फ आर्ट को फिजिकल फॉर्म में या एक्सरसाइज में या टेक्निक में नहीं सीखते, हम इसे बहुत अलग अलग डायमेंशंस में सीखते हैं, बहुत अलग अलग लेवल्स में सीखते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना. जो मार्शल आर्ट्स है बहुत एक पौराणिक कथाओं से ये हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुना है इसके बारे में. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन में आ जाता है. कि ये सबसे, जैसा हम सोच भी नहीं सकते कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन या बहुत पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन हो, वहां से ये चलते आ रहा है. और ये एक आर्ट है जो कि बहुत ही नेचुरल था उस समय और अभी भी एक्चुअली. उस एसेंस में सीखना वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था. इनफैक्ट सर्वाइवल का तो उन्होंने बाद में लेके आए वो लोग. इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग टू हियर, बट सेल्फ डिफेंस एस्पेक्ट ऑफ मार्शल आर्ट वाज डेवलप्ड मच मच लेटर. Not, it was not started because of self defense. It was started because of a spiritual reason. ये एक आध्यात्मिक मोड़, आध्यात्मिक माध्यम के से ये शुरू हुआ क्योंकि ये मंक्स ने शुरू किया है. और जो मंक ने एक्चुअली फॉर्मली मार्शल आर्ट्स शुरू किया वो भारतीय थे. उनका नाम था बोधि धर्मा. एंड बोधि धर्मा ने साउथ में जाके कलरी पट्टू की स्थापना की, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मार्शल आर्ट सिस्टम है. और फिर वही बोधि धर्मा चाइना में जाके वो शाओलिन टेम्पल के हेड बन गए, और वहाँ पे उन्होंने शाओलिन कुंफू की स्थापना की. और फिर धीरे धीरे वो जापान, उनके जो भी शिष्य थे वो जापान में गए और फिर कोरिया में गए, और ऐसे ऐसे स्प्रेड होते गए. और फिर समय के साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट एक्चुअली फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में चालू हो गए बनना. और ये जो आज एक्चुअली अभी वो तो था बहुत ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बैक, जो हिस्टोरिकली हम बोल रहे हैं. बट माइथोलॉजिकली ये तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि ये मार्शल आर्ट तो और भी ज्यादा सुना है एक्चुअली. क्योंकि हमने, अगर हम अब देखोगे भागवत में, कृष्णा जी एक रेस्लर थे. कृष्णा वाज अ रेस्लर, और ग्रीक माइथोलॉजी में आप देखोगे, ग्रीक हिस्ट्री में एक्चुअली प्लेटो, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने बहुत सारा एजुकेशन के बारे में बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी है, वो भी एक रेस्लर थे. और रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म, जिसे हम कुश्ती कहते हैं. और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, जो कि इजिप्शियन में भी आप देखोगे, जो कि फैरोज थे वहाँ के, जो किंग्स थे अर्लियर, वो भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म्स अलग अलग वो भी सीखते थे. और मेसोपोटामिया में भी आप देखोगे. और ये सभी जो कल्चर है, और भारतीय कल्चर भी है, वो सभी एक जो वॉर का थीम बहुत कॉमन था सब में. और ये सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं था. ऑफ कोर्स हिस्ट्री में एक ऐसा भी दौर आया, ऐसा भी समय आया जब युद्ध एक बहुत ही नेचुरल फिजिकल एक्सप्रेशन था. अभी भी वो है अंदर से, वो एक्सप्रेशन अभी भी है. बट अभी वो थोड़ा चेंज हो गया. अभी हम इतना वॉर को अलग तरीके से देखते हैं. हम अभी बहुत ही एक्सटर्नल तरीके से हम देखने लगे हैं. और तभी भी हमें लगता था कि वो उस समय के लोग भी एक्सटर्नल ही वॉर को देखते हैं, फिजिकल वॉर को देखते हैं. बट जो कि पुराने जो मंक्स थे, पुराने जो सेजेस थे, जो ऋषि मुनि थे पुराने, उन्होंने वॉर को बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से देखा. क्योंकि वो मानते थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मार्शल आर्ट में, कि ह्यूमन बीइंग, मतलब कि एक इंसान
इंसान का होना मतलब अंदरूनी एक बैटल है। टू बी अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी इन एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास है स्पिरिट और हमारे पास है मैटर। हमारे पास है, बोल सकते हैं आप, एक हेवनली नेचर। हमारे पास एक ऐसे क्वालिटीज है, सोल के क्वालिटीज है जो कि बहुत ही अच्छे गुण है, जैसे कि उदारता एक गुण है, कंपैशन, करेज, ये सब अच्छे गुण हैं जो कि सोल की तरफ से आते हैं। और हमारे पास ऐसे भी कुछ है, चीजें हैं जो थोड़े एनिमलिस्टिक और मटेरियल है नेचर में। हमारे पास एक जेलसी है, हमारे पास गुस्सा है, हमारे पास बहुत सारे फियर्स है, डाउट्स है। और इन दोनों के बीच में हमेशा एक टेंशन है। क्यों? क्योंकि एक नेचर को डोमिनेट करना है, और ये चॉइस ह्यूमन बीइंग के पास है कि वो अपना बेस्ट लेके आए या वो अपना वर्स्ट लेके आए। सो ये सेम कॉन्सेप्ट को आप महाभारत में भी बहुत अच्छी तरह से देख सकोगे, क्योंकि जो पांडवास है वो बहुत अच्छे क्वालिटीज हैं, और कौरवास है वो बहुत ही, बोल सकते हो, वाइसेस है। सो इट्स अ बैटल बिटवीन वर्च्यूज एंड वाइसेस, और गुड एंड इविल। और ये थीम हम आज भी फॉलो करते हैं मॉडर्न कंटेम्पररी कल्चर में भी। हम ये हीरो और विलन, या तो आप बोल सकते हैं कि गुड एंड इविल, इवन इवन सुपर हीरोज के भी आजकल बच्चों लोगों को बहुत पसंद है, वो सुपर हीरोज वो भी यही सेम थीम में है। हमेशा एक स्टोरी ऑफ अ हीरो कैनॉट बी विदाउट फाइटिंग अ ड्रैगन, और विदाउट फाइटिंग अ मॉन्स्टर और डीमन, और विदाउट फाइटिंग अ विलन। असलियत में, और ये स्पिरिचुअली बहुत जो जो स्पिरिचुअली जो जिन्होंने ज्यादा उनके बारे में पढ़ा होगा या ज्यादा समझा होगा, वो एक चीज जरूर समझेंगे कि दिस हीरो एंड विलन बोथ एग्जिस्ट विद इन अस। वो हमारे अंदर ही है। हम ही है वो हीरो, हम ही है वो विलन अंदर से। सिमिलरली हम ही है कौरवास, हम ही है पांडवास। क्यों? क्योंकि ये एक मिथिकल एक स्टोरी है जो कि अंदर की रियलिटी के बारे में हमें बोलती है। और मार्शल आर्ट का वैल्यू यहाँ पे था कि आप ये स्पिरिचुअल लड़ाई जीतो। क्योंकि आप स्पिरिचुअल लड़ाई जीतोगे तो आप एक बहुत ही अलग तरीके की जिंदगी जी पाओगे। यू कैन लिव अ वेरी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि फिजिकल वॉर एक्चुअली डजंट रिजल्ट इन एनीथिंग गुड। फिजिकल वॉर आप जब भी देखोगे, डजंट मैटर विच साइड विंस, इट्स ओनली हार्मफुल, it takes a toll, बट ये फिजिकल वॉर ये बहुत ही एक सुपरफिशियल एक्सप्रेशन है, जो वहां तक हम अपनी इमेजिनेशन को वहीं पे लाके एम्प्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली द रियल वॉर एक्चुअली हैपेंस इन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। और ये हम अगर बच्चों को बचपन से इसके बारे में ये ट्रेनिंग देंगे और ये एजुकेशन देंगे, क्योंकि वो चैलेंजेस फेस करेंगे आजकल के बच्चे, या कभी भी एज एन इंसान हम लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। और जब भी चैलेंज, मतलब ये नहीं कि हम कुछ बाहर की कुछ कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अंदर से आते हैं, हमारे हमारे डर, हमारे फियर्स, हमारे बैड क्वालिटीज, ये एक्चुअल चैलेंज है। और ये कभी भी नहीं मिटने वाला। ये जब तक, अगर जब ये एवोल्यूशन की तरफ से जब तक हम अपने आप को एक एबल, एक वॉरियर की तरफ नहीं बनाते, हम अपने आप को एक हीरो, हम एक हीरो नहीं बनते अंदर से, तब तक ये चैलेंजेस हमें हराते रहेंगे। और इसके वजह से हम बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे। हमारी जो पोटेंशियल है, हर इंसान, कहा जाता है मार्शल आर्ट में कि हर इंसान एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है, जो एक दिन पेड़ बन सकता है। बट पेड़ बनने के लिए एक सही एजुकेशन की जरूरत है। अदरवाइज बहुत सारे सीड है जो पेड़ नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप पेड़ बनोगे, अगर, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, इनफैक्ट आप सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छे मिसाल, बहुत अच्छे उदाहरण बन के आप उन्हें बहुत कुछ, आप उन्हें फल दे सकते हो, आप उन्हें छाया दे सकते हो। सो यू कैन डू अ लॉट गुड फॉर सोसाइटी व्हेन यू डू जस्टिस टू योर पोटेंशियल। एंड दैट्स द गोल ऑफ लर्निंग मार्शल आर्ट। आजकल मार्शल आर्ट की जब बात करते हैं लोग, इससे हॉबी या स्पोर्ट्स या फिजिकल फिटनेस एंड एक्टिविटी, या मैक्स टू मैक्स बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, वहां तक लाके छोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल इतना सही तरीके से इसे ऑफर नहीं किया जाता। और ये नेचुरल है, क्योंकि लोग इन अ वे एज अ सोसाइटी हम बहुत ये डर जाते हैं जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, और मेनली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अंदर की जो लड़ाई है, उससे हम बहुत डर जाते हैं। आजकल की जो सोसाइटी है, आप इसे कंपैरिजन करो
इंडिया की एंशियंट सोसाइटी से, जो इंडियन भारतीय सभ्यता भारतीय कल्चर से सोसाइटी उससे आप कंपेयर करो, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उस समय आप बोल सकते हैं 2000 3000 5000 समय पहले लोग बहुत ही निडर थे एक्चुअली। वहाँ के वहाँ की सोसाइटी बहुत ही फियरलेस थी। वहाँ की सोसाइटी बहुत ही एजुकेशन को बहुत ही अलग तरीके से वो देखते थे। वो उस समय के लोग अपना जो कि एक एंशियंट गुरुकुल सिस्टम था उस समय का, वो एक मार्शल आर्ट स्कूल्स थे जहाँ पे बच्चों एक्चुअली पेरेंट्स बच्चों को वहाँ छोड़ देते थे, और बहुत समय के बाद बच्चे वहीं पे रहते थे, उसके बाद वो वापस आते थे अपनी पूरी शिक्षा के बाद। और वो शिक्षा उन्हें अलग, आप बोल सकते हो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में दी जाती थी, जैसे कि रेसलिंग हो, आर्चरी हो, या शॉर्ट फाइटिंग हो। बट इससे भी ज्यादा उन्हें वो प्रिपेयर किया जाता था कि अंदर की लड़ाई आप कैसे लड़े, आप एथिकल बैटल को कैसे जीते। और ये आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा मिस आउट है, क्योंकि आजकल हम जो एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उनका गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाओ, यहीं तक एक लिमिटेड हो चुका है। कि इसलिए आजकल आप देखोगे, मैं भी बहुत रिसेंटली मैं भी एक्चुअली बड़ा हुआ हूँ लास्ट 10 साल में। मैंने भी कॉलेज देखा है, स्कूल देखा है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिग्री, पोस्ट डिग्री, ग्रेजुएशन, एमबीए। और मैंने एक सवाल अपने से पूछा कुछ समय पहले कि मुझे ये सब में क्या मिला। ऑफ कोर्स मेरे पास डिग्री है, ठीक है, आप वर्क कर सकते हो, आप कमा सकते हो, ठीक है, बट जिंदगी के बारे में मैंने क्या सीखा इन सब से एक्चुअली। और मुझे एक बहुत ही एक रियलिटी का पता चला कि हम ज्यादा नहीं सीखते आजकल के एजुकेशन सिस्टम में। आजकल की एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें बताती हैं, और ये इंफॉर्मेशन है जो हमें ज्यादा हेल्प नहीं करते, क्योंकि अगर हम चैलेंजेस फेस करेंगे वहीं पे बहुत लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमने वो प्रिपेयर ही नहीं किया कि लाइफ क्या है एक्चुअली। अब लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ना मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रमोशन और सिर्फ ज्यादा पैसे। ये एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है जिसमें हम बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। आगे बढ़ना मतलब कि आप अपनी पोटेंशियल को कैसे एनहांस करके आप कैसे अपने आप इवॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे फिजिक्स, आजकल के साइंटिस्ट ने एक चीज खोदी है कि द गोल ऑफ लाइफ इज एवोल्यूशन। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, ये एक फिजिकल एवोल्यूशन ही नहीं, एक अंदर एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ जो कि कहा जाता है। और अंदर से इवॉल्व करना, अंदर से अपने आप को जानना, हम कौन है, ये बहुत ही एक रिलीजियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा एक्चुअली स्वधर्म क्या है लाइफ में, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस है जिसे हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम एक करियर, एक प्रोफेशन बनाएंगे, कोई भी हो, वो एक्चुअली जिंदगी का मकसद है। आप यूज कर सकते हो वो प्रोफेशन को या वो माध्यम को, पर जिंदगी का पर्पस एक्चुअली बहुत ज्यादा है उससे। जिंदगी एक सीईओ पोजीशन में जाके या बहुत सारे पैसे कमा के वहां नहीं थकती, क्योंकि लोग खुश नहीं है आजकल के। आप देखोगे बच्चे, आजकल के अडल्ट देखोगे आप, वो इतने खुश नहीं है जितना हमें लगता है। और जो खुशी है वो भी कितनी टेम्परेरी खुशी है, वो भी एक बहुत एक सवाल है जो हमें पूछना चाहिए अपने से। मार्शल आर्ट सिस्टम में एक कहा जाता है कि जो मार्शल आर्ट एजुकेशन सिस्टम है वो वैल्यू बेस्ड पे काम करती है। जिसका मतलब है कि आप ट्रेनिंग दो बच्चों को वैल्यूज पे, क्योंकि स्किल्स आजकल के बच्चे बहुत इजीली सीख लेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, उन्हें कुछ भी कहो, आप कुछ मटेरियलिस्टिक स्किल के बारे में बोलो, वो ऐसे यूट्यूब में जाके सीख लेंगे वो, और कोई भी पिकअप कर लेंगे, कोई भी नॉर्मल स्किल हो या कोई भी। और ये स्किल्स इट्स नॉट एन इशू, ये आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे भी सीख लेंगे आजकल के टेक्नोलॉजी यूज करके। बट इसका एक डाउन साइड भी है, क्योंकि वैल्यू पे फोकस नहीं है, ना तो वैल्यू पे फोकस है एजुकेशन सिस्टम का, और ना ही ये बच्चों को सिखाया जाता है कि आप वैल्यूज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल करेज, यू नो ये एक वैल्यू है। आप निडर कैसे बनो, क्योंकि लाइफ में आप बहुत सारे हर्डल्स फेस करोगे, आप ऑब्स्टेकल फेस करोगे, आप बहुत जगह पे डर जाओगे और वहां पे आप रुक जाओगे। उसके लिए बच्चों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए बच्चों को सिखाना पड़ता है कि इसका मतलब क्या, आप इसका मतलब क्या, कि डर क्या होता है। ये मैंने कभी नहीं सीखा अपने स्कूल सिस्टम में कि व्हाट इज फियर। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फियर
इज समथिंग सो कॉमन इन ऑल ऑफ अस। लेकिन क्यों क्यों ये डर क्या है, ये किस चीज का डर है? और बहुत सारे डर तो सिर्फ काल्पनिक डर है, इट्स ओनली इमेजिनेटिव फियर, यू नो। और यहाँ से आप एक कदम आगे कैसे बढ़ो, क्योंकि अब जब आगे बढ़ोगे, दैट्स द हीरोइक जर्नी। अब आजकल की एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था यूएसए में, वहाँ की साइकोलॉजिस्ट जो कमिटी है उन्होंने एक रिसर्च किया कि क्यों आजकल के बच्चे सुपर हीरोज मूवीज को बहुत पसंद करते हैं, क्यों उन्हें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन पसंद है इतने। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल स्टोरीज है, यू नो। अ हीरो विद स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल वेपन, गोज एंड डिफीट्स एन इविल। और ये इन्होंने इस खोज में एक ऐसी चीज पता चली कि इन रियलिटी ह्यूमन बीइंग क्रेव्स, और ह्यूमन बीइंग का जो अंदर की जो एक जरूरत है वो एक हीरो बनने की है, अंदर से, यू नो। बाहर से ठीक है, ये सब फैंटेसी सुपर हीरो मूवीज है बाहर से, यू नो। बट अंदर से बच्चों को वो क्वालिटीज चाहिए, इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सुपर हीरोज में वो जो जो स्टोरी के माध्यम से वो क्वालिटीज देखते हैं कि हाँ, एक सुपर हीरो है जो कि जरूरत के टाइम पे आके लोगों की मदद करता है। और ये सब क्वालिटीज बच्चे, क्योंकि दिस इज टू बी ह्यूमन, दिस इज टू बी ह्यूमन बीइंग, जो नेचुरली टू हेल्प पीपल। एंड ये जब बच्चों को अंदर से नहीं मिलती, यू नो, तब वो बहुत एक्सटर्नली वो क्रेव करते हैं। एंड इस ये एक है जो गैप है जो आजकल की सिस्टम में हमें फिक्स करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम सिर्फ ये ऑनलाइन कल्चर में सीमित रह जाएंगे। आजकल, यू नो, मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि आप मार्शल आर्ट सिखाइए ऑनलाइन, यू नो। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं सिखा सकता ऑनलाइन, क्योंकि आप कैसे एजुकेशन ऑनलाइन हम दे सकते हैं। मैं नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। आप स्कूल कर सकते हो ऑनलाइन, आप कुछ भी सीख सकते हो ऑनलाइन, बट आप जिंदगी के बारे में लोगों को कैसे ऑनलाइन सिखा सकते हो? एक ये मुझे बहुत डाउट गया, कैसे मैं सिखा सकता हूँ ऑनलाइन कि निडर बनो? कैसे मैं सिखा सकता हूँ ऑनलाइन कि डिसिप्लिन अपने जिंदगी में कैसे लाओ? कैसे मैं ऑनलाइन सिखा सकता हूँ कि लाइफ में आप काम कैसे रहो? क्योंकि ये सब बहुत ही हमें ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये हम बहुत ही गलत दिशा में चले जाएंगे। हमें लगता है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है मार्शल आर्ट में, कि हम आजकल ये जो पेरेंट्स में बहुत बहुत दिखाई देता है आजकल, कि हम बच्चों से स्ट्रगल छीन ले, हम बच्चों से उनका जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो छीन ले, और आके सब बच्चों को हथेली पे आके सब दे दे हम लोग, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि नो हम सब कुछ ऑनलाइन ले लेंगे। अब आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो फुटबॉल ऑनलाइन अटेंड करते हैं। अब मेरे लिए ये इतना बड़ा शौक था, आप कैसे फुटबॉल ऑनलाइन सीख सकते हो, यू नो? क्योंकि यू हैव टू गो टू द ग्राउंड, यू हैव टू फील द लैंड, यू हैव टू फील द बॉल, यू हैव to really, it's a very different ball game altogether. You cannot become a Lionel Messi or Ronaldo online, you know. Same thing, you can learn many things online. In reality, you cannot actually learn online, because online is only information, online is not transformation. And education का गोल है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो भंडार पड़ा है हमारे पास, गूगल है, यूट्यूब है, जो चाहिए इन्फॉर्मेशन कभी भी आप ले सकते हो। बट आप ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को कैसे दोगे, यू नो? और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे एक प्रोसेस की, एक प्रॉपर प्रोसेस की तरफ से जाएं डेवलपमेंट के लिए, यू नो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही एक अच्छी जैन कहानी है कि एक बहुत बहुत समय पहले एक मंक थे, एक जैन मंक था। वो एक दिन जा रहे थे अपने ट्रैक पे, और उन्होंने बहुत सारे कैटरपिलर्स जो हैं, बहुत सारे कैटरपिलर्स को देखा जो कि ऊपर चढ़ रहे थे। और एक कैटरपिलर था, वो भी बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए। बट क्या हुआ कि वो कैटरपिलर नहीं, बहुत ट्राई कर रहा था, बट मंक को दया आ गई। तो मंक ने बोला ठीक है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो वो कैटरपिलर को उसने हाथ में उठा के नीचे से ऊपर रख दिया, ठीक है, नीचे से ऊपर चढ़ा दिया, और मंक चला गया। और कुछ समय बाद मंक वापस उस स्ट्रीट से, वापस उस जगह से गुजरा, और उसने बताया क्या देखा, कि बाकी सारे कैटरपिलर्स थे जो अपने बलबूते ऊपर चढ़ गए थे, वो सब बटरफ्लाई बन गए सब, क्योंकि कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ बटरफ्लाई। पर जो वो एक था जिसकी मदद उस मंक ने की थी, वो बटरफ्लाई नहीं बन पाया, वो अपने पंख नहीं खोल पाया।
वो, और वहीं पे सीमित रह गया। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रगल था, उसका जो पूरा प्रोसेस था लर्निंग का, मंक ने अपनी सो कॉल्ड उदारता से वो उससे छीन लिया। और एक्चुअली इसको लगा ये अच्छा, उसे लगा ये अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं था। इसने वो एजुकेशन ही छीन लिया इससे। और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो कि एक बहुत ही एक कॉन्ट्रास्ट रियलिटी के बारे में बोलती है आजकल के समय में, कि you cannot educate somebody without without struggle, or without going through that internal conflict, or without going through that internal discipline। और ये पॉसिबल ही नहीं है, यू नो। वरना क्या होगा कि हम भी उस कैटरपिलर की तरह अपने बच्चों को वहीं छोड़ देंगे। और जो असली एक पोटेंशियल है कैटरपिलर का, जो कि बटरफ्लाई बनने का और पंख उड़ा के उड़ने का, वही हम छीन लेंगे अपने बच्चों से। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो हमें एक एक्चुअली मार्शल आर्ट सिस्टम में ये कहा जाता है कि कभी भी टीचर कभी भी बच्चों के पास नहीं जाता सिखाने के लिए। बच्चों को टीचर के पास आना होता है। और ये इट्स नॉट ओनली सम, ये कोई रूल या कोई रेगुलेशन नहीं है, ये एक वैल्यू है एक्चुअली। क्योंकि जब अब बच्चे डिसिप्लिन कैसे सीखेंगे? बच्चे, अगर आप बच्चों को मॉर्निंग में अगर वो जल्दी उठने का आप ट्रेनिंग नहीं देते हो, जल्दी ट्रैवल करके टीचर के पास जाना, एक सेंटर में जाके सीखना, ये सब आप अब नहीं दोगे बच्चों को, तो वो नहीं बन पाएंगे मार्शल आर्टिस्ट। कोई भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप उनसे वही स्ट्रगल छीन लेते हो जो उन्हें एक्चुअली अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालने का मौका देते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा आजकल की एक मिस्टेक है, जो हम कभी कभी इसमें एक उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं, कि हमें लगता है कि आजकल बच्चों को आप एक्चुअली एज अ पेरेंट, we all want our children to be happy, you know. We all want our children to not struggle, which is very normal, which is very natural. There's no there's nothing bad about it. But we have to understand, happiness is not something which is connected to luxury। और ये एक बहुत ही एक बड़ा प्रिंसिपल है, जो कि बोधि धर्म ने मार्शल आर्ट में कहा था, कि लग्जरी और हैप्पीनेस दो अलग चीजें हैं। लग्जरी हमें प्लेजर देते हैं, प्लेजर वो सेंसेस के ऊपर है लग्जरी। आप अच्छा खाना दोगे, या अच्छी सुविधाएं दोगे, या अच्छा घर लेके दोगे, दैट्स समथिंग टू डू विद प्लेजर, ओके। इससे ना तो बच्चों, या ना तो कोई ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है, ना तो कोई ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है, ना तो कोई ह्यूमन बीइंग अपनी पोटेंशियल को जानता है। हैप्पीनेस तब ये एक और आप गीता में भी आप ये पढ़ सकते हो कि हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस जो कि सस्टेनेबल ट्रू हैप्पीनेस, comes when you do justice to your potential, when you do justice to yourself, you know। जब आप अपने अपने अगर कैटरपिलर अपने आप को कब जस्टिस प्रूफ करेगा? जब वो बटरफ्लाई बनेगा, यू नो। और ये इसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हर हर डायमेंशन पे हो, यू नो। एंड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम वैल्यूज सिखाएं, और बच्चों को ना कोई एक्सटर्नल स्किल सिखाएं, यू नो। स्किल तो ठीक है, वो सीखना, वो सीख ही लेंगे, वो हमें कुछ ज्यादा इसमें टेंशन भी लेना नहीं पड़ेगा। बट वैल्यू सिखाने के लिए आपको कुछ न कोई डिसिप्लिन या कोई आर्ट में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं सीख पाएंगे वो वैल्यूज। और ये एक असली असली चीज है, असली एक एजुकेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी, यू नो। एंड एक बहुत ही अच्छी एक कहावत थी, जो मार्शल आर्ट्स के बहुत आई मीन एक लेजेंडरी फाइटर ब्रूस ली ने कहा था, कि हमेशा मार्शल आर्ट 4 डायमेंशंस पे काम करता है। एक तो है फिजिकल डायमेंशन, जहाँ पे आप फिजिकल फिटनेस सीखते हो, जहाँ पे आप फिजिकली बॉडी को पुश करते हो, थोड़ा अपने लिमिटेशन है बॉडी को उसको पुश करते हो, क्योंकि बॉडी हैज अ कैपेबिलिटी, बॉडी के पास एबिलिटी है अपने आप को पुश करके तो बेटर बनने की, यू नो। फिर एक तो आता है एनर्जेटिक डायमेंशन, जहाँ पे आप स्टैमिना, जहाँ पे आप एनर्जी अपनी होती है, जो नेचुरल वाइब्रेंट एनर्जी होती है, वहां पे आप टैप करके अपने आप को बहुत एफिशिएंट बना सकते हो। बट ये दो तो ठीक है, ये दो तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। आप टेनिस क्लास ज्वाइन करो, फुटबॉल क्लास ज्वाइन करो, आप जिम जाओ, आप योगा जाओ, उसमें आपको मिल जाएंगे ये दो। बट मार्शल आर्ट सीखने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इमोशनल एस्पेक्ट पे, और वो है मेंटल एस्पेक्ट पे। क्योंकि इमोशनली हम बहुत फ्रजाइल हो चुके हैं एज अ सोसाइटी, यू नो। और ये जो 14 to 21 ईयर्स की जो एज होती है, यहाँ पे बहुत इजीली ये दिखाई देता है कि इमोशनली हम बच्चे बहुत वनरेबल हो जाते हैं, यू नो।
कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब भी बच्चे इनिशियली कॉलेज में जाते हैं या तो लेट लेट नाइन्थ स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, उस समय ये एक देखा गया है कि बच्चों बहुत ही एक्सटर्नल ओपिनियन पे डिपेंड रह जाते हैं कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, आजकल कूल बनने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा या तो वो करना पड़ेगा, मुझे सोशल ग्रुप के लिए सोशल ग्रुप चाहिए, इसके लिए मुझे अपना अपनी जो नेचर है, अपनी मेरी जो नेचुरल क्वालिटी है उसको बाजू में करके जो लोग जो कर रहे हैं वो कॉपी करना पड़ेगा। और ये बहुत ही यहाँ पे वो भी देखा गया है कि रिलेशनशिप क्राइसिस बहुत यहाँ पे हो जाते हैं लोगों का। उन्हें there's a big lack of direction at this age। एंड उसके बाद 21 to 28 में ये एक करेक्शन फिक्स करने के लिए हम लोग बहुत ही अलग अलग चीजें करते हैं। हम एक्सटर्नली चीजों को जाके चेस करते हैं, एक्सटर्नली कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है ये दो 14 to 28 years, यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट इट्स अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, as a in a kind of an formation to go into the society and to know what is our role and identity। और यहाँ पे मार्शल आर्ट बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्योंकि जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं हम अपने फियर्स को फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बहुत बोलते हैं स्पारिंग और थोड़े फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे विद ऑल प्रोटेक्शन, विद वेरी लाइट, विदाउट एनी डेंजर। बट वो बहुत ही जरूरी एक ट्रेनिंग है। अदरवाइज क्या होगा कि हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व बैठे बैठे ऑनलाइन या तो कुछ कुछ पढ़ के कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम को हम ऑन द ग्राउंड सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एजुकेशन हमें सिस्टम हमें ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग इतना नहीं देती। यू नो बट मार्शल आर्ट में ये इसी चीज को इन्होंने बहुत ही काउंटर किया है, क्योंकि सब ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड है। थियोरी कुछ इतना कुछ पढ़ाते ही नहीं है एक्चुअली मार्शल आर्ट में। देयर इज नॉट मच थियोरी टू लर्न, but what you learn in martial art is actual implementation। that आप जब डर जाओगे तो कैसे फाइट करोगे। आप अलग अलग अपोनेंट जो है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई बहुत अक्लमंद है, कोई थोड़ा लेस अक्लमंद है, कोई बहुत फास्ट है, कोई बहुत रिदमिक है, कोई बहुत डिसेप्टिव है। आप अलग अलग अपोनेंट की जब आप ऐसे ट्रेनिंग करोगे, अलग अलग अपोनेंट को कैसे देखा जाएगा, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे टैक्टिक बनाते हैं, कौन से एंगल में हमें अपने हमें अटैक करना है, कहाँ से हम अपना डिफेंस खोल सकते हैं तो डिफेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से डिस्टेंस में हमें फाइट करना है, ये सब जो ट्रेनिंग है दिस इज एक्चुअली ट्रेनिंग फॉर लाइफ। इसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली लाइफ में होता है। जब भी हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं हमें वी नीड द सेम पैरामीटर्स, वी नीड राइट एंगल, वी नीड राइट परसेप्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, राइट कॉज, देन यू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। कौन सा सोल्यूशन कभी काम करेगा, कौन से लोग पे काम करेगा। दिस इज द ट्रेनिंग फॉर लाइफ एंड द मेन ट्रेनिंग इज हाउ टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ, कि अपने आप को बैलेंस कैसे करें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बहुत इजीली देखा गया है कि जब भी हम कोई भी एक प्रॉब्लम को एक बच्चों आजकल के बच्चे जब को कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, लाइफ प्रॉब्लम, वो बोलते हैं ना बहुत फ्रजाइल और वीक बन जाते हैं। वहां पे बहुत कम लोग हैं जो इजीली उसको पेनिट्रेट करके आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं देगी बच्चों को बचपन से। और मार्शल आर्ट सिस्टम में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिलेबस है, जहाँ पे बच्चों को रियल लाइफ चैलेंजेस कैसे डील करते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि बच्चे जब रियली फेस करेंगे चैलेंज को, फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो अपना बैलेंस लूज कर देंगे। और ये बहुत नेचुरल है। हमें लगता है कि हम जब हम एक कंफर्टेबल जोन में हम कुछ भी कर सकते हैं। इन रियलिटी लाइफ हमें चैलेंज आउट ऑफ कंफर्ट जोन देती है। चैलेंज का मतलब ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ नया सीखो, कुछ नया देखो, कुछ नया एक्सपीरियंस करो। और कुछ भी नया होगा, कुछ भी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होगा। और बच्चों को जब तक हम ये ट्रेनिंग नहीं देंगे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर कैसे जाओ, अब उनमें अगर हम उन्हें बहुत सारा पैम्पर करके रख देंगे तो हम भी एक कैटरपिलर को ही बना के रख देंगे हमारे घर में, जहाँ की बच्चों की पोटेंशियल बटरफ्लाई बनने का है, बच्चों का पोटेंशियल बहुत सारी चीजें करने का है। हम वहां पे उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। सो बीज जो है वो छोटा पौधा बन के रह जाएगा, मैक्स टू मैक्स। एक बड़ा पहाड़, एक बड़ा ट्री, एक बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। और ये एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम जो भी हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, इन जनरल जो भी एक सोसाइटी है, उन्हें हमें हमें उन्हें उस तरीके से देखना है। क्योंकि इसके अगर सही ट्रेनिंग और सही अगर हम एथिकल ट्रेनिंग बच्चों को बचपन से नहीं देंगे, इससे क्या होगा कि उनका जो मॉरल जो कंपस होता है एक अंदर का, जो एक हमारे पास एक कहा जाता है मार्शल आर्ट में कि हमारे पास एक कंपस जो होता है जो हमें दिशा देता है जिंदगी में, वो हमारे अंदर होता है कि हमें हमें सब अंदर पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट जब तक हम इस सही तरीके से उसे सीखेंगे नहीं यूज करना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्रॉस रोड आएंगे लाइफ में जहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ पे हम रुक जाएंगे। एक्चुअली हमें पता नहीं होगा कि क्या कौन सी दिशा लेना है, कहाँ जाना है। और ये मॉरल कंपास की जो ट्रेनिंग है मार्शल आर्ट सिस्टम में एक फ्रेमवर्क से होती है। क्योंकि आप बच्चों को ये मत बताओ कि ये सही है ये गलत है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग फॉर्म ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आप किसी को बोलोगे ये करो वो मत करो, it's a very verbal thing, it's a very intellectual thing. It doesn't help a child, it doesn't help anyone actually, because this is आप बच्चों को एक रूल बुक हाथ में दे रहे हो। और आजकल के बच्चे, they are rebellious in nature. They are not somebody who follow rule without logic. They are not somebody who follow rules or regulation just like that. And this is very important क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट एक ह्यूमन बीइंग बनाना है। हमें एक कंप्यूटर या रोबोट नहीं बनाना कि जो हमारे कमांड पे काम करे वो। This is very important because we need individuals, we need human beings who are independently know how to come to the right thing, how to find right solution. And उसके लिए एक ही तरीके की एजुकेशन है जो कि हम कहते हैं एजुकेशन थ्रू एग्जाम्पल। क्योंकि आजकल मैंने देखा है ये बहुत ही आप घर घर में आप देख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, ये आप ये करो आप ये मत करो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों को ये नहीं सिखाते कि डिसीजन कैसे लेते हैं। आप बच्चों को आप एक यस नो तो गुड बैड का जो बहुत ही सुपरफिशियल आप बोलते हैं ना, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे छोड़ देते हो। इनफैक्ट बच्चों को चॉइसेस लेने के, अगर आपको प्रिपेयर करना है बच्चों को कि वो अपने इंडिपेंडेंटली सही चॉइसेस ले सके, तो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को पहले समझ में आए कि एथिकल वैल्यूज क्या है, और उस एथिकल वैल्यूज जैसे कि एक्टिंग विद जेनरसिटी, एक्टिंग विद सॉफ्टनेस, एक्टिंग विद करेज। जब तक बच्चों को वो नहीं पता है कि ये ऑप्शन है मेरे पास, बच्चे वहां पे वो चॉइसेस नहीं ले पाएंगे। या तो बच्चे फॉलो करेंगे आपको, पर वो एक फॉलोअर्स होंगे, वो सोसाइटी के लीडर्स नहीं बन पाएंगे। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको खुद के अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पर वो ट्रेनिंग, वो लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि every human being needs to be his own leader if not others. Every human being needs to be the leader of self, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है। तो ये एक बहुत ही एक फनी चीज है। मैंने देखा है बहुत जगह कि लोग बच्चों को कहते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, बट खुद वो फॉलो नहीं करते। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो देख लेंगे कि क्या जो कोई बोल रहा है वो क्या कितना एथिकली कोई चीज बोल रहा है, और या तो कितना ऊपर से कोई चीज बोल रहा है। क्या आप बच्चों के करो कि देखो आप बच्चों का आप कहो ये चीज कि देखो आज कोई आएगा तो आप वेलकम करो, दिल से वेलकम करो आपके आपके गेस्ट को। पर आप अगर खुद नहीं करते हो दिल से वेलकम, तो बच्चे भी नहीं मानेंगे आपकी बात। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो आप उनका वो देख लेंगे कि यहाँ पे कुछ दोगलापन है, यहाँ पे कुछ डबल स्टैंडर्ड्स है। एंड दिस इज वेरी गुड इन टूडेज जनरेशन। दिस इज एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है आजकल के बच्चों में, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। और ये एक यहाँ इससे यूज करके आप एक इंडिपेंडेंट एक ह्यूमन बीइंग को आप उस एजुकेशन सिस्टम को आप ऐसे आगे लेके जा सकते हो जिससे बच्चे फ्रीली अपने डिसीजंस को ले सके। क्योंकि हमें ये भी एक बहुत सारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बोधि धर्मा ने कही थी कि हमें लगता है कि क्या सही गलत है वो हमारे लिए सिर्फ वैलिड है। हम कभी नहीं कह सकते कि दूसरे इंसान के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लाइफ इज मच बिगर, लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है हम सबसे। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे बच्चों के लिए डॉक्टर ही, मेरे बच्चों को डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अगर हमें ऐसे लगता है कि हम ये एजुकेशन देते हैं। क्योंकि आप हर सीड एक स्पेशल सीड होता है।
अगर आपका बच्चा का सीड एप्पल है तो आप उसे मैंगो नहीं बना सकते। अगर वो मैंगो बन भी गया तो वो एक्चुअली खुश नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तभी खुश होगा जो अपनी पोटेंशियल को वो जस्टिफाई करेगा। एंड ये एक माइंडसेट है जो कि मार्शल आर्ट सिस्टम के फाउंडेशन में है। और जब भी मार्शल आर्ट सिस्टम सही एक एजुकेटर कोई मार्शल आर्ट आर्ट फॉर्म सिखाता है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, अलग अलग आर्ट, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स पढ़े हैं, अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे तब आप एक्चुअली जो कि वैल्यू होता है एक आर्ट का, तब आपको बहुत सारा फायदा होगा उससे। क्योंकि हेल्थ फिटनेस तो ठीक है, बहुत टेम्पररी चीज है ये, ये तो आप ऐसे भी सीख लोगे। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना लाइफ की ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। और ये एक है स्पेशल चीज है मार्शल आर्ट के, जो हमें सब हेल्प कर सकती है सीखने के लिए। तो दैट्स इट, मुझे यही एक एक्चुअली शेयर करना था कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है मार्शल आर्ट का, वो मेन चीज है मार्शल आर्ट सीखने के लिए। तो अगर आपको भेजना हो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक सही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक है, आर्ट में ये एक मेन चीज है। बाकी सब चीज बोलते हैं ना एक्सेसरीज है, दे एक्सेसरीज, हेल्थ फिटनेस सेल्फ डिफेंस वो तो आपको मिलेंगे ही, बट इससे ज्यादा आपको ये वैल्यू लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली बच्चों को काम आएगा। ये एक्चुअली सबसे ज्यादा बच्चों को काम आएगा जिंदगी में। So that's it. If anybody has questions, Ayush, you can just let me know. यस यस श्योर, बहुत ही मजेदार वेबिनार था एंड आई एम श्योर सबको इतना ही अच्छा लगा होगा। एंड सबने कुछ ना कुछ ये वेबिनार से सीखा, आई एम श्योर। सो Ayush, everyone's video is stopped, I guess. It says you can't start your video because the host has stopped it. So is अच्छा, there some setting that you've done? Because I'm trying to start my video, but it's not happening. It says you cannot start your video because the host has. ओ Yeah, आई थिंक yeah, yeah. You यस cannot. It यस keeps saying that you can. Now it's started. Yeah, yeah, yeah. ओके Sorry. Continue, Ayush. You continue. यस यस सो आई वाज जस्ट सेइंग कि अभी किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज दे कैन आस्क। Vineet, I have a Yeah. question because Yes. I have a son who is 7 years. What are I mean, where suppose if you have your classes here in around Borivali, so you can give your details so that if you want to send it to you or and what is the structure and how many what's the duration and a little bit details about that will help. Yeah, I'm just putting my contact number and on the chat for everyone to take it down, and also the name of the classes. So I offer actually 8 different martial art forms, which is boxing, kickboxing, MMA, Muay Thai, Japanese sword, Bruce Lee style, Jeet Kune Do, Wing Chun Kung Fu, and Krav Maga, which is mainly for self defense. And it's in the structure of the class is very interesting because I follow Bruce Lee system of grading, which is very different from karate or any other thing. Bruce Lee said that there are different stages of learning martial art. One is what you called cat, second is tiger, third is lion. And at the end of a lion, you become a black belt. And it doesn't stop there. After lion, there is falcon, there's black mamba, there's iron dragon. Iron dragon is like the ultimate. You're like a grandmaster, that kind of a post. But the interesting thing is that this cat, tiger, lion is based on qualities. You don't grade person just because they spent more time training or they have more physical ability. For example, the cat is like when you learn tools, when you learn basic tools and you know what you have and what you don't have. When you know your strength and weaknesses in a proper way, then you can pass the cat aspect. Then in tiger training, you learn to deal with your fear. So basically, here you start sparring. Here you learn the art of fighting, all this different dimension of strategy, angle, balance, and and when you are able to control your emotions, when you're able to control your fear and keep calm pressure, keep presence of mind, that's where is the when you pass the tiger. Lion is when you become a leader, like when that's when you actually Vineet, apply for your black belt. That when you become lion means that now you can lead yourself, now you can lead yourself in a way where you can be independent, where you don't need any more like some guidance of a teacher directly. You can be your own teacher now. Slowly you can start to be a teacher. So it's a very interesting because nowadays it's not the way we learn many things. Nowadays it's like, okay, you do 3 months and you get this, you do 6 months and you get a certificate.
But in martial art, the value of a true value of a certificate or a black belt comes from actually conquering something at every stage, because that's where the real education comes into play. So, like, but for children, you said this is, this webinar is for children. So for children, which, so you like mix all the styles for even for children, or like for them, there is a specific style that you teach. Children can learn any style because every style has a particular value. For example, if you want to learn Japanese sword, then the value is to be the focus, concentration, and decisiveness. That's the value of a Japanese sword. If you want to learn kickboxing, then flexibility in a balance, that's the value. If you want to learn boxing, then courage and grit, that's the value. So basically, it's based on what values you want to work in. But if somebody has to ask me what martial art you should start, I would, I mean, it's of course, it's if somebody doesn't know, I will always suggest start with Bruce Lee's Jeet Kune Do, because it's the first mixed martial art, which is very different from MMA, what we know. Where mixed martial art means when you learn to fight everything in all ranges. You learn weapon system, you learn kicking, you learn punching, you learn knee elbow, you learn grappling. Because Bruce Lee said a martial artist is one who knows to fight in all ranges. You cannot only learn boxing and you think that okay, I can punch, but what if your opponent is not a boxer, somebody who knows to kick, then your punching will be not valid. Only similarly, when you face a life challenge which is out of your range, and you cannot fight it, so better to learn something which is actually combination of everything, which is Bruce Lee style Jeet Kune Do, or you can say any martial arts system which offers multiple ranges at one. Because there actually what are your actual strength and weakness, and you are comfortable to deal with anything which comes. My son, by the way, loves to box. So I have Yeah. something I'll just show you. If you see this, there is a punching bag in my Yes, house. yes, yes, I saw. And this is for my son, huh? Yeah. So earlier we had a normal punching bag, the kids wala, but then Hmm. this is actually not a professional level. It's only 2 feet, but it's really heavy for kids. It is So I ordered it because he loves to Yeah. keep boxing. Yes, yes, In that's his nice. spare time, he does that. Yeah. Yes. Yeah. Anyway, thanks a lot, Vineet. Anyone else has any questions? I think there is a question in the chat box, I guess. One question I got on my WhatsApp Yeah. Yeah. was what age a kid should start learning martial art. The right age, I mean, actually is 5 years. I mean, right as in like you can say that's the most better age to start from 5 years old. That's the ideal stage if you can do that. And but there is no age limit as such. You can learn anytime, doesn't matter. But not below five. Below five is too early. But five onwards, slowly, because your children also need some ability to grasp. If anyone has any more questions, you can pose, or I guess that's it. Ayush, you can propose the vote of thanks. Yes, yes. Thank you so much, Vineet, Lalan Yeah. ji. It was an amazing session by you, and actually we learned a lot, and we busted all our myths about martial arts. And of course, parents should be motivated to make their child join martial arts. And of course, they'll contact you. You have given the number, and if anyone wants to contact you, I'll also share your details so they can contact Mushin Martial Arts. So yeah, thank you so much. See you again in good next webinar. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, Vineet. See you soon. Yes. Bye bye. Yes, you. Bye. Bye.